Hello, everyone. We welcome you to this session, a power-packed session that we've specially planned for all of you. On behalf of Javik Planets, I welcome all of you to this session, and where we have very interesting content lined up for you guys. We will be demystifying a lot of myths around immunity, around health and lifestyle challenges, especially around this COVID era, wherein all of us are really worried about our health and really are clueless about how do we take care of ourselves in a better and holistic form of way. So with me, I have Mr. Vikas Madan and Ms. Swati Jain. Welcome. I welcome the two of you to this session. Mr. Vikas Madan is Javik Planets founder, and Ms. Swati Jain is a leading health nutritionist based out of Faridabad. I'll forward this conversation to you, Mr. Vikas, right now to talk about how Javik Planet came about to be, a little more about yourself and things that you would like us to know. Sure. Thanks, Jaspreet. So my journey as an entrepreneur starting Javik Planet, I'll go a little bit into the background. I am a corporate professional with 26 years experience, having worked with multiple, multinational companies. And my journey, I have seen health is so important that people, I have seen people lagging behind because of health issues. In spite of having potential, they are unable to realize their full potential, and in this stressful life people are unable to cope up, and they don't know how to keep themselves healthy. So in my this journey, I have come across a lot of hurdles personally as well as with people around me. And particularly, I would like to say, when I had health issues around my weight, I had, it was my sort of good luck that I got introduced to Swati ma'am, and she was, the one who introduced me to healthy living and the good food. So basically, that is where my affection with health food started, and now it has taken the full shape of a complete business. I've started this venture, Javik Planet, and my objective is to basically provide quality health food in organic, herbal, vegan, Ayurvedic food products, at a affordable rates to the masses. And that's how I'm here. Thank you. And so far as since my I said my journey started with introduction started with Swati ma'am. So I wanted her to be my first guest who introduced us to health and nutrition. And welcome, Swati ma'am, for joining us. And in these trying times of COVID, I think who can be a better person than you to guide us, and what is the right way, what is the right food. So let's hear from you. So Jaspreet, I would request you to put that curated questions to Swati ma'am, and let's hear from her. Bilkul. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Vikas. Thank you, Mr. Vikas. Firstly, I want to introduce me. I'm dietitian Swati, diet counselor and health nutritionist and lifestyle expert. I work as a chief dietitian in Chirayu Healthcare in Bhopal, Madhya Pradesh, and in this field, in dietetics, I last 20 years, and now I'm running my own clinic in Faridabad, Sector 16A, Faridabad. Ma'am, that's a wonderful experience, and we're so delighted and excited to have you here. And in light of today's present times, we've pulled up some questions to ask you so that all of us are better aware about our health and our challenges, and also the audience that will be viewing this recording later on. So let me start with our first question, which is again around pandemic. So आपके हिसाब से इस पैंडेमिक में इम्यूनिटी बिल्ड करना कितना जरूरी है, एंड वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए जब हम अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं?
friends, the world is divided into two phases. One is before COVID-19 era and second is after COVID-19 era. So यदि हम बात करें COVID-19 बिफोर COVID-19 एरा की, तो उस टाइम पे लोग इतने पहले अवेयर नहीं थे अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फूड हैबिट्स के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल के लिए. they were very careless and very lethargic attitude about their health issues, their health problems. So but आज इस समय में लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अपने हेल्थ को लेके, अपने फिटनेस लेवल को लेके, अपनी फूड हैबिट्स को लेके. एंड सभी बड़ा चेंजेस आया है अब लोगों में कि अब हमें अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है, जिससे कि हम इस कोविड एरिया में इससे फाइट कर सकें और इससे हम जीत सकें. तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हमें फोकस करने की जरूरत है. जिसकी वो टाइम टू टाइम आपने आपके साथ आपने कुछ शेयर करेंगे, सॉरी मैं आपको बताऊंगी. तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हमें अभी फोकस करने की जरूरत है. राइट मैम. सो आप कहना चाह रहे हैं कि कोई ऐसी एक चीज नहीं है जिस पे हमें फोकस करना है, बट इज टू रियलाइज दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग इम्यूनिटी इज अ प्रोसेस. हाँ, यदि इम्यूनिटी की बात करें तो लोगों का ध्यान अभी इस वक्त छोटी फूड पे ही जा रहा है. तो इसके साथ हमें बहुत सारे चेंजेस करने हैं, जैसे कि हमें अपना लाइफ स्टाइल सबसे पहले बदलना होगा. लाइफ स्टाइल मतलब बहुत ही मैं अपने क्लाइंट्स में देखती हूँ, बहुत तरह के क्लाइंट्स होते हैं. तो जैसे हमें लाइफ स्टाइल में प्रॉपर टाइम से उठना, टाइम से खाना, कब खाना है, कैसे खाना है, कहाँ खाना है, कब सोना है, कब वर्कआउट करना है. तो ये लोगों में मैंने जो देखा है इतने टाइम से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है. जैसे लोग सुबह, कई लोग ऐसे हैं 12-1 बजे सुबह उठते हैं, लेट नाइट सोते हैं, मिड नाइट जब लोगों की सुबह होती है तब उनका सोने का टाइम शुरू होता है, वर्कआउट के लिए प्रॉपर मॉर्निंग में टाइम नहीं है. तो बहुत सारी चीजें हैं. तो सिर्फ खाने में कुछ चीजों को ऐड कर लेने से इम्यूनिटी नहीं करेक्ट होगी. हमें अपने लाइफ स्टाइल एक प्रॉपर दिनचर्या होनी चाहिए. उसके बाद हमारी फूड हैबिट सही होनी चाहिए. हमें नेचर की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि अब लोगों ने चेंजेस एक्सेप्ट किया है और लोग जा भी रहे हैं. इसके साथ साथ हमें अपने लाइफ में वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी, फ्रेश एयर, ये सारी चीजों पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है. मैम आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि एक होलिस्टिक अप्रोच, वर्कआउट, फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल को चेंज करना. बट मैम एक बहुत कॉमन ओपिनियन है और नोशन है दैट कुछ मेडिसिन और कुछ दवाइयाँ खा के आप अपनी इम्यूनिटी जल्दी डेवलप कर सकते हैं. जैसे कोविड के टाइम पर भी हम सब ने देखा कि हर कोई नेचुरल रेमेडीज घर पे ट्राई करना शुरू कर दिया, खाने में चीजें थोड़ी चेंज कर दी, बाहर का जंक खत्म हो गया. बट क्या ऐसा हो सकता है दैट वी कैन बिल्ड इम्यूनिटी इन अ फ्यू डेज ओनली? नो, ये लोगों की थिंकिंग है जसप्रीत की कुछ दिन कुछ पर्टिकुलर फूड लेने से, कुछ मतलब कुछ मेडिसिन, कुछ हर्ब्स लेने से या कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम को ऐड कर लेने से हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाएगी या बहुत चेंजेस आ जाएंगे. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये लाइफ टाइम प्रोसेस है एंड इट टेक्स टाइम. ड्यूरिंग द टाइम अब हमें, आपने यदि स्टेप लिया है कुछ चेंज करने का, तो उसको कंटिन्यूटी में करना बहुत जरूरी है. यदि आपने सुपर फूड्स अपनी डाइट में ऐड करे हैं, यदि आपने योगा या कोई वर्कआउट अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड किया है, यदि आपने कुछ फूड हैबिट चेंज करी है, तो उसको हमें आगे तक फॉलो करना है. ये नहीं कि ये टाइम फेज था, कोविड की वैक्सीन आई और उसके बाद वापस से हम उसी ढर्रे में आ गए, वापस से हमारा वही शेड्यूल हो गया. तो ये बहुत ही गलत होगा और इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. आगे भी किसी वायरस का अटैक हो सकता है. आपने देखा है टाइम टाइम पे नए नए बहुत सारी चीजें आई हैं. तो ये तो एक चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ लाइफ में आना ही है. तो बेटर है कि अब हम अपनी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए जो हमें टिल द लाइफ हमें एक सही अप्रोच लेके हम चलें के लिए. बिल्कुल मैम. यू touched upon superfoods, herbs, and I'd like to pitch in that at Javik Planet we are also focused on providing natural organic food to masses. That's our mission, that
the world around us should be healthy, fit and fine, and whatever food that they consume, and especially the organic and natural products, they should be injected with the nutrients. उनके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. ऐसे नहीं कि जैसे हम पैकेज फूड खाते हैं तो न्यूट्रिएंट वैल्यू कुछ नहीं होती, और चिप्स खा रहे हैं या अनहेल्दी फूड ईटिंग हैबिट्स हैं, जिस वजह से आज के टाइम में भी देखा जा रहा है कि कोविड या कोई भी बीमारी उन्हीं लोगों को ज्यादा पकड़ती है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है. तो ऐसा कोई पर्टिकुलर फूड आइटम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, विच विल हेल्प अस बिल्ड इम्यूनिटी? हाँ, कुछ बहुत सारे फूड हैं, पर मैं सबसे पहले जसप्रीत कहना चाहूंगी कि हमारी जो इंडियन थाली है जिसमें कि सारे फूड ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं, सीरियल्स है, ग्रेन्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वाटर है, ये सारी चीजें हमारी थाली में होना चाहिए, सारी फूड ग्रुप्स होना चाहिए. एक यदि मैं थाली की बात करूं तो 1 कटोरी दाल की, 2 कटोरी सब्जियों की सर्विंग, प्रॉपर मल्टीग्रेन के फुलके हैं, फ्रेश चटनी है, फ्रेश पिकल्स हैं. तो ये सारा जब कुछ हमारी थाली में होगा, उसके बाद ही आप कुछ सुपर फूड्स वगैरह भी लेते हैं तो वेरी गुड. पर ये करके कि आप प्रॉपर खाना ही नहीं खा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी इंडियन थाली है, जो हमारे इंडियन हाथ से जो किचन में जो स्पाइसेस हैं, वो सारे बहुत ही मेडिसिन, मतलब कहना चाहिए बहुत सारी उसमें पोषक तत्व या उसका मेडिसिन इफेक्ट है उनके, तो वो जरूर हमारी थाली में होने चाहिए. तो इसलिए ये ये जो हमारा एक बैलेंस डाइट है, ये बहुत जरूरी है. इंडियन थाली वेरी गुड फॉर गुड न्यूट्रिशन. और इसके साथ ही यदि आप कुछ कोर फूड की बात करते हैं तो उसमें मैं कहना चाहूंगी कि कुछ सुपर फूड्स होते हैं, जैसे पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्रेश कोकोनट, कोकोनट वाटर, एमरंथ जिसको कि राजगिरा का आटा बोलते हैं, मल्टीग्रेन्स है जैसे कि रागी है, ज्वार, जौ, बाजरा, ये सारे बिल्कुल नेचुरल फूड्स हैं और इनमें ढेर सारा न्यूट्रिशन है, ढेर सारा प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. तो ये सब हमें अब डाइट में ऐड करने की जरूरत है. जैसे आप प्लेन व्हीट की चपाती खाते हैं तो उसकी जगह आप मल्टीग्रेन लें, तो उसमें आपको बहुत सारे ग्रेन्स के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, हर तरह की वेजिटेबल्स होनी चाहिए. और अपनी डाइट में यदि यदि आप बात कर रहे हैं, आपने पूछा कि कोर फूड या कोर आइटम, तो मैं बोलूँगी अपनी बॉडी को टाइम टू टाइम डिटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है. तो इसके लिए हमें मॉर्निंग कोई भी स्मूदी, कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जूस जरूर डाइट में रखना चाहिए और हेल्थी फूड्स अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए. Right, ma'am. I think the crux is here that हम जो भी चीजें लें उनको एक तो सही रेशियो में लें. एक हमारी इंडियन थाली सेट है जिस चीज पे हम अब आगे चेंज होते जा रहे हैं, एक सब्जी, एक दाल, एंड चपाती की भी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ाने के लिए उसमें भी मिक्स्ड आटा यूज करें, और सुपर फूड्स जैसे आपने बोला, एंड स्मूदीज आपने बोला. तो मैम, दिस ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन व्हिच आई थिंक दैट आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता होगा कि एक हेल्दी डाइट चार्ट के कौन से कोर एलिमेंट्स होते हैं? कोई पर्टिकुलर कोर एलिमेंट्स जो बिल्कुल होने ही चाहिए, मतलब आप इनको मिस करेंगे तो आपकी डाइट खराब है. ऐसे यदि आप बात करते हैं तो मैं बोलती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है. सभी फूड ग्रुप्स होने चाहिए और एक प्रॉपर डाइट प्लान का आप बात करते हैं कि नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए कि वो कैसा होना चाहिए. तो मैं एक छोटा सा प्लान ऐसे शेयर करूंगी जनरल ह्यूमन बीइंग के लिए कि क्या होना चाहिए. तो इसकी शुरुआत सबसे पहले डिटॉक्स वाटर के साथ होनी चाहिए. कोई भी हेल्दी सा ड्रिंक है, या तो आप डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं, या फिर आप कोरिएंडर वाटर है, या फिर आप कोई भी जो हमारे हर्ब्स हैं किचन में जो स्पाइसेस हैं उनमें से किसी एक को लेके एक हेल्दी ड्रिंक हमें लेनी चाहिए. उसके बाद हमारे इसमें वर्कआउट जरूरी है. कम से कम 30 to 40 मिनट्स का आपने वर्कआउट करना है. उसके बाद हमें फ्रूट्स की सर्विंग रखनी है. इट्स डिपेंड कि क्या हम किसके लिए, पर एक जनरल में आपको प्लान बता रही हूँ कि फ्रूट्स ब्रेकफास्ट के पहले फ्रूट्स हो, उसके बाद प्रॉपर
नेचर से आया हो ब्रेकफास्ट हो, ना कि उसमें आपने पैक्ड ब्रेड रख दी जो कि बहुत कॉमन है, या फिर कोई भी ऐसे रेडी टू ईट वाला मील आपने खा लिया, वो नहीं होना चाहिए। स्प्राउट्स ले सकते हैं, कोई भी पल्स, उस पल्सेस को आप सैलेड फॉर्म में ले सकते हैं, तो एक ब्रेकफास्ट होना चाहिए। लंच में आपकी प्रॉपर इंडियन थाली है, इवनिंग में मंचन के लिए आप कोई स्नैक्स हैं, हेल्दी स्नैक्स, फॉर एग्जाम्पल रोस्टेड मखाने हैं, चने हैं, या नट्स हैं, या फिर आप कोकोनट गिरी है, कोकोनट वाटर है, तो ये लेना उसके साथ ही। और डिनर शुड बी वेरी लाइट, बिफोर बिफोर सनसेट आपका डिनर हो जाना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी होता है। ये एक बहुत जरूरी चीज है, जैसे कि आपने बोला कुछ पर्टिकुलर फूड, तो मैं बोलती हूँ डिनर जल्दी होना बहुत जरूरी है बच्ची, क्योंकि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सन के साथ चलता है। जब सन पीक पे होता है तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बिल्कुल पीक पर होता है, और आफ्टर सनसेट वो बिल्कुल बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा प्रॉपर होल डे का जो मील है वो बिफोर सनसेट हो जाए। यदि ये पॉसिबल नहीं है तो आप उसके साथ लाइट फूड ले सकते हैं, और वर्कआउट होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके का एक छोटा सा एक मैंने आपको डाइट प्लान शेयर किया कि इस तरीके का हमारा डाइट पैटर्न है। मैम, एक क्वेश्चन आपकी बात सुन के मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम बात कर रहे हैं कि दाल सब्जी रोटी सब होनी चाहिए, बट आज की डेट में अडल्ट्रेशन की भी बहुत प्रॉब्लम है। कि जैसे अभी मैंने एक पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि अ लॉट ऑफ दाल्स दैट आई परचेज्ड अराउंड दिस कोविड टाइम, बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन हो गया था एंड वी कुड नॉट गो टू फिजिकल स्टोर्स, सो आई फेल्ट दैट दे वर नॉट एट ऑप्टिमम क्वालिटी। आई फेल्ट कि शायद मैं खा तो घर का ही खाना रही हूँ, बट मुझे उससे न्यूट्रिएंट्स मिल पा रहे हैं कि नहीं, मुझे उसकी श्योरिटी नहीं थी। तो इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड सजेस्ट कि दाल भी या हम पल्सेस, राइस, व्हीट, ये जो भी चीजें ले रहे हैं तो इनका सोर्स कहाँ से होना चाहिए? हाँ जसप्रीत, एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है कि हम कोई चीज़ कहाँ से परचेज कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो जैसे कि अब पल्सेज हैं या फ्रूट्स वेजिटेबल हैं, तो आप ऑर्गेनिक फूड ले सकते हैं, वेरी गुड। और बहुत सारे इसके लिए जैसे जैविक प्लानिट है आपका, ये आपने बहुत अच्छा स्टार्ट किया है। मतलब इसमें बहुत सारे सुपर फूड्स हैं या जो भी है, सो बहुत जरूरी है कि हम जैसे कि आपने बोला कि प्योरिटी हमें नहीं मिल रही, तो इसके लिए हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि एक अच्छी प्लेटफॉर्म से हम अपनी चीज़ों को परचेज करें, कि जो हम ले रहे हैं तो उससे हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिले, या जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिल सके। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल है, तो मार्केट में कोई भी ऑयल आज की डेट में, सारे ऑयल रिफाइंड ऑयल हैं। तो रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट ऑटोमेटिकली बॉडी को हार्म ही देते हैं। तो बेटर है कि इसकी वजह से एक अच्छा हम प्रोसेस करा हुआ ऑयल ना लेके फ्रेश, जहाँ पे विदाउट रिफाइंड भी ऑयल को निकाला जाता है, ऐसी अप्रोच को हम फॉलो करें। और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आई थिंक दैट इज वेरी गुड, तो आपने शुरुआत करी है। Thank you, ma'am. So basically, I just want to add one thing which Swati ma'am said. Like it says, you know, you are what you eat. Jaisa an vaisa man. So that is something which is really important. So the sourcing of food is very very critical. And my बिल्कुल objective of starting this Javik Planet is that, you know, we procure quality product and provide it to masses at affordable rates. That is our promise, and that's what we live for. Yeah. वेरी गुड। Yes, I am very, very thankful to Swati ma'am. There were a lot of questions in our mind. And also to our viewers, if you have any questions, please leave them in the comment section. We will try to respond to each one of them and maybe conduct another session on the Q&As with Swati ma'am again. And thank you so much for joining in. Thank you. Thank you, Swati Thank ma'am. you. Thanks, Jaspreet. Yeah. Thank you. Thank you. Bye. Bye.